رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، یہ دنیا نام ہے گردش کا۔ سورج کے رفتار سے جو آنا جانا ہوتا ہے، اس سے دن بنتے ہیں، دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، اور ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، اور مہینوں سے سال بنتے ہیں۔ سالوں کا ہو جاتا ہے، برسوں کا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی کی ایک زندگی گزر جاتی ہے۔ ہر آدمی اپنا وقت گزارتا ہے جتنا اس کا ہوتا ہے، کیونکہ جب موت آتی ہے تو شاید ہر چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، وہ بالکل بر وقت آتی ہے۔ حضرت سید پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک پوتا پیدا ہوا۔ ظاہر ہے جیسے زیادہ خوشی ہوتی ہے، ان کو بھی خوشی ہوئی۔ اس کا نام انہوں نے الحق رکھا۔ تو جب حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہوئے تو وہ پوتا ان کا 11 سال کا تھا۔ آج وہ پوتا ان کا تقریباً 95-96 سال کا ہو گیا۔ اصل میں اب ہمارے لوگ جو ہے میڈیا کے ہو گئے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور چاہے ہم میڈیا پہ بیٹھے رہیں اور لوگ ہمیں دیکھتے رہیں، لیکن بنیادی طور پہ جن لوگوں نے اسلام کا کام کیا ہے، تو جس کو آج میڈیا کہا جاتا ہے، وہ اس سے ناآشنا تھے۔ ان کے دور میں یہ چیز نہیں تھی۔ قوت کے ساتھ اپنے پیغام کو آگے بڑھاتے رہے، وہ فرد سے افراد کی تک پہنچتا، اور افراد کی تعداد بڑھتی، ہزاروں اور لاکھوں تک پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مکے میں تشریف فرما تھے، اور 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور اسی دوران جو ہے نہ صرف عرب بلکہ اس کے گرد و نواح یہ بات لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ ایسے ایسے ایک نبی ہیں، اور ان کا یہ پیغام ہے، اور وہ عرب میں مکے میں رہتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا کام چل رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں کوئی چیز نہیں تھی۔ فطرت کا جو عمل ہے وہی تھا۔ انسان گدھے کے اوپر سوار تھا، گھوڑے کے اوپر سواری کرتا تھا، اونٹ پہ سواری کرتا تھا۔ جہاں جانا ہوتا سب سے تیز رفتار سواری گھوڑا ہوتا تھا، اور جتنی تیزی اس میں آ سکتی تھی اتنی تیزی سفر ہو سکتا تھا۔ لیکن آج آپ کھڑے ہیں تو یہ دور بہت آگے بڑھ گیا ہے، ہر چیز میں ترقی ہو گئی ہے، اور لوگوں کے مزاجوں میں بھی تبدیلی ہو گئی ہے۔ اس لیے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت میڈیا میں بیٹھے رہیں گے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہیں گے تو لوگ ہمیں یاد رکھیں گے، ورنہ ہماری صورت، ہمارا چہرہ، ہمارے معاملات سارے کے سارے لوگوں کو بھول جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو حضرات گرامی، جو لوگ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں ان کو میڈیا پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کے بغیر ہی لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور لوگ دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اخبارات، اور پھر اس کے بعد ریڈیو، پھر ٹی وی، اور پھر اب بات بہت آگے بڑھ گئی، تو ان میں سے کسی چیز کے شوقین نہیں تھے۔ میں ایک دفعہ ادھر آیا تو بڑی چیز حضرات کا بھائی لالا جی آئے، تو کسی نے اخبار میں دیا کہ لالا جی حضرات ادھر تشریف لا رہے ہیں فلاں، وہ اخبار تو رکھا ہوا تھا، دیکھ رہے تھے، اس پہ وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ ہمارے بارے میں یہ خبر اخبار میں کس نے دے دی اور کیوں دی ہے۔
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग जानबूझ के अखबार में खबर देते हैं और उनकी कोई और खबर देता है तो उनको इस बात पर भी एतराज होता है। हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दफा हज पे गए तो हज के बाद उन्होंने लंबा सफर किया और तकरीबन वो 27 सफर को वापस पहुंचे। जब वापस पहुंचे तो वहां उन्हें किसी ने कहा कि हजरत जी आपकी तस्वीर भी आई थी अखबार में और खबर भी आई थी कि आप हज के बाद इतने मुल्कों का दौरा करके आ रहे हैं। हजरत बाबू जी कई दिन तहकीकात करते रहे कि वो खबर किसने दी थी, वो तस्वीर किसने दी थी और क्यों दी थी अखबार में। तो हजरात गिरामी, ये वो हजरात हैं जो मीडिया से दूर रह के अपना काम करते रहे और जिन लोगों को मीडिया का शौक मीडिया के जरिए अपनी ताकत मनवाते हैं। और हजरत पीर अली शाह साहब और उनके खानदान जो शाह है, इन्होंने मीडिया के दौर पर अपने आप को नहीं मनवाया और न अपने काम को मनवाया। तो हजरत शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये 95-96 साल इसमें गुजार दिए, तो कभी उनको तमन्ना नहीं हुई कि वो रेडियो पे आए, टीवी पे आए, लोग उनको देखें, लोगों को पता चले। तो नहीं, वो फर्द से अफराद और अफराद से इस तरीके से वो आगे बढ़े। और आज जो उनका जनाजा था तो वो बताता था कि लाखों अफराद वहाँ पर मौजूद थे और वो जबर से नहीं आए हुए थे, हुकूमती और सरकारी इशारों से आए हुए थे। वो हर आदमी जो भी आया था अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश और अपनी मोहब्बत से आया था। और रह गए हैं जो नहीं पहुंचे, उनकी तादाद आप अंदाजा करें वो कितनी होगी। ये तो फौरी तौर पे खबर मिलती है तो जो लोग पहुंच सकते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो बरकत उनकी अजीम शान नमाज जनाजा हुई और इतनी अजीम शान हुई कि मेरे ख्याल में तारीख में उनका नाम रहेगा, भी जनाजा हुआ था। हजरत सैयदना पीर में शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का दौर था, उस वक्त रेल ही जरिया था और फिर गोल्डशिप में तो पैदल ही जाना होता था ज्यादातर लोगों का, बल्कि रावलपिंडी से भी लोग पैदल जाते थे। पीर में शाह साहब का जनाजा शानदार हुआ। का दौर था 1974 का, तो वो बहुत तरक्की का दौर था। तो उस तरक्की के दौर में भी उनका अजीम शान जनाजा हुआ और आज शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का इंतकाल हुआ है। तो आज भी उनका जनाजा बताता है कि हम लोगों के दिलों में रहते हैं। हजरत शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े नरम मिजाज और बहुत ही यानी वो थे इस लिहाज से कि बातें कम करते थे, लेकिन कोई आदमी जब उनसे बातचीत करता था तो फिर वो ज्यादा गुफ्तगू करते थे। काम वो दर्स निज़ामी पढ़े हुए थे तो तलबा उनको मिलते थे तो उनसे बड़ी खुशी का इजहार करते थे और वो पढ़े हुए भी थे। हालांकि उन्होंने तदरीस नहीं की, क्योंकि आदमी तदरीस न करे तो सब कुछ भूल भाल जाता है, लेकिन उन तदरीस न करने के बावजूद उनको दर्स निज़ामी के मवाद और निज़ामी के बारीक नुक्ते जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद। एक दफ़ा मुझे अपने एक साथी ने बताया कि मैं गया और मुझसे वो कहते हैं शरह जामी की एक इबारत पढ़ी और इबारत पढ़ने के बाद कहते हैं ज़रा इसकी आप तशरीह करो। वो कहने लगे मैं खैर क्या तशरीह करता, मैं तो थोड़ा से बात की तो उन्होंने आगे उस बात को उठा लिया और काफ़ी देर पर जो है काफ़ी देर तक उस इबारत के ऊपर वो गुफ्तगू करते रहे। मैं खुद जब काफिया पढ़ता था तो मैं एक दफ़ा मिलने के लिए गया तो मुझसे पूछा कि काफिया क्या पढ़ते हो, तो मैंने कहा काफिया पढ़ते हो। कहने लगे अच्छा तो काफिया शुरू कैसे होता है। अब वो शुरू कैसे होता है जब उन्होंने ये कहा तो मैं समझ गया कि या वो शुरू की इबारत पढ़ के तो सवाल क्या करेंगे तो मैं समझ गया। तो इसलिए मैंने जो जब इबारत पढ़ी काफिये की कल कलिमतुल लफ्ज़ुन वुदिअ लिमाना मुफरदुन मुफरदिन मुफरदन, तो मेरी तरफ देखा और कहा कि यहाँ तीनों एराब होंगे। मैंने कहा जी हाँ यहाँ पर तीनों एराब आते हैं। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारे जो उस्ताद साहब थे तो वो कहने लगे मैं जब पढ़ता था तो मैं दोनों लाला जी हजरात बैठे थे, मैं गया तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ते हो, तो मैंने कहा फलां किताब पढ़ते। तो वो शाह अब्दुल हक साहब पूछने लगे तो बड़े लाला जी कहते हैं कि इससे न पूछो, इसको याद नहीं होगा तो परेशान होगा, शर्मिंदा होगा। तो फिर आप
खामोश हो गए, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। फिर लाला जी खुद पूछते, हाँ याद करते हो नहीं याद करते हो? तो ये मतलब ये तालिब इल्मों से इस तरीके से बात करके तो उनको इस तरफ तवज्जो दिलाते थे कि जो आप पढ़ते हो वो आपके दिलो दिमाग में महफूज होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। आप आगे आगे पढ़ रहे हो और पीछे पीछे भूल रहे हो। जिस तरीके से हाफिज कुरान हकीम याद करता है, तो इस तरीके से जो दर्स निज़ामी पढ़ने वाले तलबा होते हैं तो वो जो कुछ पढ़ते हैं उसको वो याद करते हैं। एक दफ़ा वो उस्ताद से पढ़ते हैं, फिर तालिब इल्म आपस में बैठते हैं, बार बार उसको तकरार करते हैं और तकरार से वो सबक पुख्ता होता है। फिर इसके बाद भी किसी को कमी रह जाए तो वो उसको अलग से याद करता है, और फिर इसके बाद भी किसी को कमी रह जाए तो वो मुश्किल मकामात जो है वो अपनी डायरी में या अपनी कापी में वो लिख लेता है, ताकि होते थे और जिस तरीके से माली मुआमलत करते थे लोगों की, तो वो भी हमारे इल्म में है। वहाँ हसन अब्दाल में एक साहब है, तो वो उनका मकान गिर रहा था, तो वो हजरत लाला के यहाँ आए तो उसका मकान देखा, तो वो फिर एक आदमी को बोला कि जाओ उस मकान का उसका नया बनाना है, पहले उसका नक्शा बनाओ और फिर मुझे सारी तफसीलात। फिर उस आदमी ने नक्शा बनवाया, उसकी तफसीलात बताई जाके लाला जी को, तो लाला जी ने कहा कि वहाँ काम शुरू करवा दो उसके घर का। तो वो पूरा मकान उसको बना के दिया। वो मुझे ले गया था अपने घर में, उसने घर दिखाया अपना कि ये सारा जो है हज़रत शाह अब्दुल हक साहब ने मुझे बना के दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सफ़ी भी थे, जमात भी थे, अल्लाह ताला ने उनको दिया था और वो देते भी थे। अब ओल्ड शरीफ इस वक्त भी पाकिस्तान में एक ऐसी खानका है कि जो ये जो काम हमने शुरू किया है, तो इसको दुनिया के लिए शोहरत का जरिया नहीं बनाना और दुनिया के हिसाब से हमारी ताला इसको कबूल नहीं करना, बल्कि ये हमारा इखलास है, तो हमारे इखलास के हिसाब से इसको कबूल करना। तो हज़रत पीर में शाह साहब ने लंगर जारी किया। वो ज़माना था गुरबत का, इफलास का ज़माना था। हर आने वाले को 2 रोटी मिलती थी, उसको बैठा के खिलाई जाती थी, उसके सामने रखी जाती थी, और एक प्लेट जो मिट्टी की होती थी उसमें दाल डाल के जो है ना उसके सामने रखी जाती थी। तो वो दाल और वो 2 रोटी जो है, वो यहाँ कराची में लोग 1 रोटी खाते हैं, पंजाब में लोग 2 रोटी खाते हैं। वहाँ खाना लोगों का ज़्यादा होता है बनिस्बत यहाँ की, तो उस हिसाब से उसके सामने रखा जाता। तो वो काम आज भी जारी है, उसमें बेहतरी आई है, उसमें आगे तफसीलात आई हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जारी हैं। तो हज़रत पीर में शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो लंगर जारी किया था, उसको हज़रत बाबूजी ने भी जारी रखा, उनके पोतों ने भी जारी रखा, और आगे पड़पोते भी उनके जो है अल्लाह करे वो उसको उसी तरीके से जारी रखे कि ये एक सदका खैर है और अल्लाह की मखलूक की भलाई है, उनका फ़ायदा है इसमें और लोगों को आसानी होती है। और फिर जो भी उनको मिलने के लिए आता है तो उसको 3 दिन वहाँ क़याम करने का की इजाज़त होती है। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ से जाते हैं तो वो समझे गरीबों के लिए उन्होंने लंगर खोल रखा है। गरीबों के लिए नहीं खोल रखा, उन्होंने अपने पास आने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए खोल रखा है। तो उस मेहमान को सुन्नत के मुताबिक 3 दिन की रहने की वहाँ पर इजाज़त है। उसको वहाँ पर रिहाइश भी मिलेगी, चारपाई भी मिलेगी और उसको तकिया भी मिलेगा और इस तरीके से उसको खाना भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा। 3 दिन तक वो रह सकता है वहाँ पर जो है। 3 दिन के बाद वो अपना मकान जिसमें वो रह रहा है वो खाली कर देगा, वहाँ और आदमी आ जाएगा। तो उन्होंने लोगों के रहने के लिए कई सराय बना रखी हैं। तो एक आदमी आए तो उसको भी खाना मिलता है, 100 आ जाए तो उसको भी खाना मिलता है, 1000 आ जाए तो उनको भी खाना मिलता है और 10,000 आ जाए तो उनको भी खाना मिलता है। हज़रात गिरामी, इस वक्त लोगों का हाल ये है, पहले भी यही था, अभी तकरीबन यही है कि खाने के वक्त में एक मेहमान आ जाए, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे संभालें और किस तरीके से इसको खाना दें, लेकिन वहाँ कोई परेशानी नहीं है। हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह तआला अलैह को लोग मिलने के लिए जाते थे
तो वो आगे से कहते थे पहले जाओ तो खाना खा के फिर आओ मिल लेंगे। तो हर आदमी से पूछते थे, जो आ जाते थे खाने के बाद उनसे पूछते थे खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो आगे से जवाब देते खाया, तो फिर कहते थे हाँ अब बात कर। तो मतलब ये है कि इस तरीके से हज़रत मौलवी का एक तरीका था, पीर मेहर शाह साहब का एक तरीका था, उस तरीके को इन हज़रात ने जारी रखा है। तो आप तमाम हज़रात जो है एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आज सवाब उनके हुजूर में पेश करें। صلی اللہ تعالیٰ علیہ